Hello dear students, as we have already discussed quantum number and their types, Pauli exclusion principle, Abao rule and Hund's rule of the maximum multiplicity. In this video, I am going to discuss more and more about the electronic configuration. This video will help you definitely in order to write the possible electronic configuration. As you can see on this whiteboard, I have already written the atomic orbitals arranged according to their increasing energies. We know, according to the Abao rule, the electrons are always filled into the subshell already filled. They are filled in the atomic orbitals according to their increasing energies. And here you can see the atomic orbitals are already arranged according to their increasing energies. Now take example of sodium. Example of sodium. We all know that sodium ka atomic number is 11. Means sodium have 11 electron and 11 proton. Electronic configuration I have already defined to all of you. It defines the arrangement or the how the electrons are configured around the nucleus in a given atom. So for sodium, as its number of electron is 11, and with the help of Abao rule, I am going to write the possible electronic configuration for the sodium. So here 1s, we know S can have only 2 electrons, not more than 2. Then 2s will come 2. Out of 11, total 4 electrons हमने यहाँ भर लिए हैं. Then it is 2p, 6 electron. Now total counting 6, 2 8 और 2 10. Out of the 11 electrons, we have already filled the 10. Now the next subshell is 3s. 11 में से 10 तुमने भर लिए हैं, बचा 8. So here I am going to write only 1. So this is the electronic configuration for the sodium metal. If I ask to write the electronic configuration for the sodium ion, then definitely this electron present in the outermost valence subshell is going to be removed, and now 1s2, 2s2, 2p6. And if somebody asks to write the valence electronic configuration for sodium ion, तो here the valence shell, यहाँ पे valence shell के लिए n की value is equal to 2. So you can write the valence shell electronic configuration, सिर्फ यहाँ पे ये इतना होगा. It is 2s2, 2p6. 1s2 अगर आप हीलियम का लिखें, अगर आपसे कहा जाए आप हीलियम का लिखिए, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 आएगा. हीलियम एक नोबल गैस है, तो एक तरीका और होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप बाकी जितने एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे 1s2 की जगह आप लिख सकते हो हीलियम 2s2, 2p6. ये समझिए, देखिए हीलियम का 1s2 आपने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया बाय राइटिंग द हीलियम हियर, और बाकी जो इसका बचा वैलेंस शेल आपने यहाँ लिख दिया. सिमिलरली इफ आई आस्क यू टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो आप लिखेंगे अबाओ की मदद से 1s2, 2s2, 2p6. 16 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा चुके हैं. उसके बाद आपका 3s2, 12 हो गए. 3p की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी 6 होती है. बचा आपके पास 4 है, तो इन चारों को यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे. और अगर आपसे कहा जाए इसको लिखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, देन डेफिनेटली ये देखिए यहाँ पे आप ये 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 to 4 और 6 10.
और 10 इलेक्ट्रॉन आपका नियॉन का होता है। तो हियर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यू कैन राइट नियॉन एंड आफ्टर नियॉन यू कैन राइट 3s2 3p4। ये किसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा? सल्फर के लिए लिखा। अब अगर कोई कहता है इसका ब्लॉक प्रेजेंटेशन करके दिखाइए, तो 3s के लिए चूंकि s है, m की वैल्यू पॉसिबल 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन है पॉली के हिसाब से, इन द अपोजिट स्पिन दे मस्ट बी फिल्ड। एंड 3p के लिए 3 ब्लॉक एक साथ और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हुन्स रूल को फॉलो करते हुए 1 2 3 and 4। दिस इज द राइट वे टू राइट to present the electron into their blocks. Now I am going to take the example of next example मैं exceptional तुम्हारा केस ले रही हूँ, that is of chromium and copper मैं next मिलूँगी, अभी फिलहाल क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। और अगर यहाँ लिखा हुआ अबाउट रूल का जो अरेंजमेंट है उससे तुम देखो तो तुम देख सकते हो 2 4 10 12 18 हो जाएगा, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पे 20 हो जाते हैं, ठीक। और 20 के बाद आपका बचा कितना? 4। तो जो एक्सपेक्टेड है वो बच्चे अक्सर ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक आपका ये 18 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पे आप आर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आफ्टर दिस 4s and 3d will come, और नॉर्मली भी एक्सपेक्ट कि ऐसा होना चाहिए, जो पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे आपका पूरी तरह से इंटरवेंशन ऑफ ओम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होगा। जो ये यहाँ पे आपका एक और रूल मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू दी एग्जैक्टली हाफ फिल एंड फुलफिल ऑर्बिटल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन जिसे आप 4s2 लिख रहे हैं, ये 4s2 ना होके 4s1 होगा, और ये 3d4 ना होके 3d5 हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑर्गन आप लिख सकते हैं, आपको बताया जा चुका है। अभी क्या होगा कि ये ऐसे ही होता है, और इसका कारण आपको बताया जा चुका है, ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द एग्जैक्टली फिल्ड और एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और एग्जैक्टली फुल फिल्ड। तो यहाँ पे 4s भी आपका एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, एंड 3d इज ऑल्सो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। यू कैन सी हियर विद द हेल्प ऑफ block presentation 1 2 3 4 and 5. So this is the right electronic configuration for the chromium, and for the copper it is 29 के लिए अगेन अगर आप आर्गन के यहाँ तक लिखते हैं, आर्गन मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है आप 3p6 तक पूरा इलेक्ट्रॉन भर चुके हो। इसके बाद आपके पास 4s है, इसके बाद आपके पास 3d है, और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 18 के बाद 220 और 9, तो ये गलत है। यहाँ पे भी अगेन जो यहाँ पे रूल लग रहा है, दैट इज द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू दी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो ये गलत है। ये न हो कि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आर्गन के बाद एग्जैक्टली हाफ फिल्ड के हिसाब से 4s will transfer one of the electron to the 3d9 and it will become 3d10. Now you can see both the orbitals, 3d is completely filled while 4s is exactly half filled, which provides extra stability to the atom of the copper and here to the atom of the chromium. Thank you, and I will provide you some questions, है ना, in order to write the electronic configuration of, है ना, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस, है ना, दूंगी। तो आप अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।